Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the participants joining us today for this insightful webinar on key changes in the income tax rule 2026 vice versa 1962 rules. This initiative has been thoughtfully organized under the guidance of CA Dr. Raj Chawla sir, whose continuous effort to bring meaningful and practice learning opportunity to professionals truly deserve appreciation. With this, I would request here Dr. Raj Chawla sir give the welcome address of today's speaker. Thank you, Satyam. Good afternoon, everyone. I welcome all of you in this today webinar on discussion on New Income Tax Act 2025. As we all know that this act is going to be implemented with effect from 1st of April 2026. And today we have CA Advocate Shikhar Gargi as a guest speaker and Advocate Manoj Sharma ji as moderator of this webinar. They both will take care all your of queries, as well as if you have any query during the session, you can ask directly. There is no issue. But if you want that query should be taken after the deliberation of our guest speaker, then you can put your query in the Q&A. As we all know, this new Income Tax Act, in comparison to old Income Tax Act 1961, there is not so much changes, but you can say old wine in new bottle. So our guest speaker will now I request Advocate Manoj ji. He is also practicing in income tax and he has very vast experience in the direct taxation. So now I request Advocate Manoj Sharma ji to please take it forward to this our webinar. Over to Manoj Sharma ji. Good afternoon, everyone. I am Advocate Manoj Sharma. A very warm welcome to all the participants who have joined us today for this informative webinar on key changes in the income tax rules 2026 vis-a-vis the 1962 rules. Today's session will cover the following important areas: a comparison between the income tax rules 1962 and the new 2026 rules, explanation of new forms and their corresponding old forms with practical insights, undertaking the simplification, structural changes, and modernization in the tax framework, rule-wise discussion on assessment, TDS, SFT, important definitions, and procedures, practical guidance for specially chartered accountants on compliance, litigation, and advisory work, key takeaways for day-to-day practice, documentation, and professional workflow changes. The initiative has been thoughtfully organized under the guidance of CA Dr. Raj Chawla sir, whose continuous efforts to provide meaningful and practical learning opportunities to professionals truly deserves appreciation. As Dr. Raj Chawla has already given introduction of Shikhar Garg, but his profile is very large. Now I will give brief profile of CA Shikhar Garg ji. We are privileged to have with us today Advocate CA Shikhar Garg ji, a distinguished professional with a unique combination of corporate experience, taxation expertise in litigation practice. He is a chartered accountant as well as a US CPA. He started his career with BPCL and later moved into tax litigation and economic offense laws. He has represented clients before Honorable ITT and the Delhi High Court and is a well-known speaker at ICI forums, appreciated for this practical and insightful session. With his strong background and litigation and taxation
Today's session will surely provide valuable clarity and practical guidance to all professionals dealing with the new tax regime. Without taking much more time, I now invite Advocate CA Shikhar Gargji to kindly take the session forward. Over to you, sir. Respected Raj Chawla sir, respected Advocate Manoj ji, and very good evening to all the participants. First of all, I'll like to congratulate Raj Chawla sir for this initiative. And it is such a huge initiative which he has taken for chartered accountant, tax professional, all the professionals in our community. Exchange of information, qua knowledge, qua other insights. So I'm deeply obliged and I'm honored that I got an opportunity to speak into such event. This is my fourth time that I'm giving lecture Sir, आपकी आवाज proper actually not coming. Please check connection. on this. Not properly audible, sir. Your voice. Hello. I am audible now. Hello. Yes, yes. Yes, sir. Okay. 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 Thanks. Thank you. Thank you. Thank you all. तो अब हम शुरू करते हैं इनकम टैक्स रूल 2026 विज़ 1962। कितने नैनसेंट रूल है, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस अच्छे हैं, मुश्किल है, अपॉर्चुनिटी है, डिफिकल्टी है, इवेंचुअली विल नो। एंड ब्रीफली आई विल कवर जो की चेंजेस है, जो इंपॉर्टेंट रूल में चेंजेस है। एंड मेरा पर्पस इस 1 या 2 घंटे के 1-1.5 घंटे के सेमिनार में आपको रूल्स के साथ में एक्सपर्टीज डालना नहीं है। अगर कोई पर्सन, कोई प्रोफेशनल यहाँ पे आया है और ही इज थिंकिंग कि भाई इवेंचुअली मेरे को रूल्स की अच्छी नॉलेज हो जाएगी, तो आई एम सॉरी कि वो नॉलेज नहीं होगी। बट मेरा पर्पस यहाँ पे आने का ये है कि आप लोगों को उन रूल्स में इंटरेस्ट क्रिएट करवा दूं कि कैसे कैसे चेंजेस जो है वो आने वाले हैं एंड कैसे कैसे हमें ट्रांजिशन करना है। 1/4/2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, इनकम टैक्स रूल्स 2026 आएंगे। बट कैसे एज अ प्रोफेशनल वी कैन ट्रांजिट इनटू दोज रूल्स। तो आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड इवेंचुअली मेरी पीपीटी दिख रही है प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इनकम टैक्स रूल्स 2026 की ट्रांजिशन फ्रॉम 1962 रूल्स टू 2026 रूल्स। तो दिस इज माय पर्पस कि आपको ये बताऊं कि किस तरीके से हमें ट्रांजिशन करना है,
किस तरीके से जो पिछले 65 साल पुराने रूल है, 65 इयर्स ओल्ड रूल है, उनमें हमें किस तरीके से 2026 में ट्रांजिशन करने की जरूरत है और क्या हमें चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकम टैक्स रूल्स 2026 ये आज तक भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। इंट्रोड्यूस नहीं हुए का क्या मतलब है? मीनिंग देयर बाय अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट इशू किया है ऑन 9th February 2026। सो दिस इज वेरी नॉनसेंट, एक्सट्रीमली नॉनसेंट। सीबीडीटी ने ड्राफ्ट इशू किया है 9th February 2026 और उस ड्राफ्ट में उन्होंने पब्लिक सजेशंस मांगे हैं कि कैसे कैसे पब्लिक सजेशंस है जिससे कि हम उन रूल्स को इंप्लीमेंट कर सके। वो पब्लिक सजेशंस कब तक है? वो है 24th February 2026। वंस वो सजेशंस आ जाएंगे सो इवेंचुअली दीज रूल्स विल बी नोटिफाइड। तो अभी तक नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 हैज नॉट बीन नोटिफाइड, बट फाइनेंस एक्ट 2026 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2026। सो देयरफॉर बिफोर 1/4/2026 ये रूल्स नोटिफाइड हो जाएंगे। आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि ये रूल्स बिफोर 1/4/2026 नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट हो जाएंगे। Article was saying कि Parliament will pass these rules before 1/4/2026, but article was wrongly saying that it would be passed by Parliament because central government will pass the rules. This is a delegated legislature. This is not the substantive law. Substantive law has already been passed. Substantive law 11th August 2025 को पास हुआ है and उस पे I have already given a lecture in this forum and in ICI's forum multiple times. At multiple locations I have given lectures. तो I am expecting कि for understanding 2026 rules, one should have nascent knowledge of 2025 Act. But I will ensure that whosoever has not even seen 2025 Act lecture of mine will be able to understand. मैं ट्राई करूंगा, बट जिसने अगर 2025 का लेक्चर देखा है उसके लिए ये लेक्चर रिलेटिवली सिंपल होगा। तो इनकम टैक्स रूल्स क्यों अमेंड करने की जरूरत पड़ी? वो इस वजह से अमेंड करने की जरूरत पड़ी क्योंकि नया एक्ट आया है। एंड नया एक्ट क्यों आया है? क्योंकि इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस अमेंडमेंट्स इन द लास्ट 65-66 इयर्स। तो उस अमेंडमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने नया एक्ट इंट्रोड्यूस किया। नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो नए रूल्स डेवलप हुए, एंड नए रूल्स डेवलप हुए तो नए फॉर्म्स डेवलप हुए। जो बेसिक फॉर्म्स जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी इंपॉर्टेंस है कि हम प्रोसीजरल वर्क करें, हमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हम भरे, वो सारे फॉर्म्स चेंज हुए हैं। वी विल लर्न अबाउट सच फॉर्म्स कि कैसे कैसे वो फॉर्म्स जो है वो चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम समझेंगे। और जो नए रूल्स है 2026 के जो रूल्स है उनकी फिलॉसफी ड्राफ्ट करने की सेम है जो एक्ट की है। मीनिंग देयर बाय इनका पर्पस सिंपल ये है कि इसको सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई हुआ है वो हम समझेंगे कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, उसी का ही ये पूरा सेशन है। तो मैं सर्टेन टच पॉइंट में ट्राई करूंगा कि आपको बताने के लिए कि ये मेथोडोलॉजी सीबीडीटी ने अडॉप्ट करी है टू सिंप्लीफाई। और मेरा प्राइमा फेसी ओपिनियन ये है कि दे डिड अ वेरी गुड जॉब। सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर काफी अच्छे तरीके से है, बाकी एग्जीक्यूशन में वी विल गेट टू नो मोर। अभी हम बहुत नॉनसेंस स्टेज पे टू कमेंट, वी विल बी एबल टू कमेंट आफ्टर इट इज कम इनटू द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो बेसिक जो चेंजेस करे हैं वो ये है कि जो टेबल्स एंड फॉर्मूलेज है इनकम टैक्स रूल्स में वो ऐड करे हैं जो कि पहले कहीं नहीं थे। इनकम टैक्स एक्ट में पहले 1961 एक्ट में 18 टेबल्स थी,
मैंने अपने 2025 के लेक्चर में बताया है कि उसमें 18 टेबल्स थी एंड इवेंचुअली वो 57 टेबल्स बन गई, और जो काफी अच्छी टेबल्स बनाई, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने टेबल्स ऐड करी है और कैसे कैसे कितना कितना उन टेबल से फायदा हुआ है। जो रूल्स रिडंडेंट हो गए थे उन सबको हटा दिया गया है। अब इन रूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज करा है। जो इनकम टैक्स एक्ट आया था वो आया था अगस्त 2025 में। उस एक्ट में जो प्राइमरी चीज थी, जो स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट था, उसमें सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट चीज लिखी हुई थी कि देयर इज नो पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज कहां पे आते हैं? पॉलिसी चेंज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट। तो जो एक्ट को चेंज करा है उसमें देयर पर्पस इज ओनली लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्रिहेंडेबल। तो पॉलिसी चेंज इनकम टैक्स रूल्स में हुई है, इनकम टैक्स एक्ट में कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ। इनकम टैक्स रूल्स में पॉलिसी चेंज हुआ है। वो क्यों हुआ है? वो सिर्फ वो पॉलिसी चेंज हुई है जो बजट 2026 में आया है। तो जो 1 फरवरी 2026 में चेंजेस आए हैं, जो टैक्स ईयर 26-27 से एप्लीकेबल होंगे, वो वाले चेंजेस की पॉलिसी चेंज हुई है इन रूल्स में, बिकॉज दे आर ड्राफ्टेड, बिकॉज दे आर प्रोमulgated, बिकॉज दे आर नॉट येट नोटिफाइड बट डिस्क्लोज्ड ऑन 9 फरवरी 2026। अगर ये रूल्स नोटिफाइड होते या डिस्क्लोज होते, नोटिफाई अभी भी नहीं हुए, डिस्क्लोज होते बिफोर 1 फरवरी 2026, तो वो पॉलिसी चेंजेस भी नहीं आते इनमें। तो सिर्फ बजट 2026 के पॉलिसी चेंजेस आए हैं। प्लस फॉर्म्स में क्या चेंज आया है? फॉर्म्स में इतने चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो ये आया है कि पहले सारे फॉर्म्स को मैन्युअली फिल करना होता था। अब काफी फॉर्म्स ऑटो फिल कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे। यू हैव टू जस्ट क्लिक अ बटन एंड जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑलरेडी अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी ऑटो फिल्ड। And there would be, in all the forms there would be more data validation check। डाटा वैलिडेशन चेक्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं, तो दैट इज वाई जो भी फॉर्म्स होंगे वो लेस एरर प्रोन होंगे। वो फॉर्म्स प्राइमरली बेस्ड ऑन रिकंसिलिएशन बेस्ड होंगे, जिसमें रिकंसाइल करना होगा हमें चीजों को। कौन कौन सी चीजों को रिकंसाइल करना होगा हम देखेंगे कि ये चीजें हैं जो हमें रिकंसिलिएशन करनी होगी। बट जो पहले मैनुअल हमें डालना होता था, वो अब प्री फिल्ड कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे। लैंग्वेज जो है हर एक फॉर्म की वो सिंप्लीफाई करी है। जो भी फॉर्म्स है उनमें नोट्स ऐड करे हैं। उनमें नोट्स इतने ऐड करे हैं जिससे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए समझने में, तो दे कैन रेफर टू दोज नोट्स एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इट मीन्स। अब जब रूल चेंज हुए हैं, फॉर्म चेंज हुए हैं, तो एक ब्रीफ में आपको बताता हूं कि किस तरीके से इन्होंने रिडंडेंसी कम करी है। 2025 टू 1962 रूल्स में 511 रूल्स थे। 1962 रूल्स में 511 रूल्स थे, जो अब हो गए हैं 333। सिमिलरली 1962 में 399 रूल्स थे, जो अब हो गए 190। तो मीनिंग देयर बाय यू कैन सी कि कितने ज्यादा रिडक्शन हुआ है रूल्स में एंड फॉर्म्स में इन द न्यू रूल्स, इन द न्यू इनकम टैक्स रूल्स। मेजरली जो फॉर्म्स है वो रिडंडेंट हो गया, एंड बेसिकली रिडंडेंट नहीं हुआ है, जो पहले 2-3 फॉर्म्स थे वो अब एक फॉर्म में कंबाइन हो गया। तो जो मेजर फॉर्म है, जैसे कि फॉर्म 3CD, उनके बारे में वी विल लर्न कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस प्रपोज करे हैं। दीज आर नॉट नोटिफाइड येट बट दीज आर बीइंग प्रपोज्ड। अब मैं चाहूंगा, देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, मैंने उसमें थोड़ा बताया था कि दिस इज मोर
ऑफ अ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। इसमें लेजिस्लेचर में काफी चीजें ऐसी हैं जो कि पावर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को दे दी गई है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को दे दी गई है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ कैन अमेंड वाया एनी नोटिफिकेशन, सीबीडीटी कैन अमेंड वाया नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन आई है तो इसकी वजह से आप लोगों को अब रूल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जो चीजें पहले एक्ट में लिखी होती थी, माइट बी पॉसिबल कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो वो अब रूल्स में लिखी हो रही है। तो मेरा वन ऑफ द बेसिक पर्पस है कि आप लोगों को जो बेसिक रूल्स है, जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, वो आप लोगों को मैं याद करवा दूं कि कैसे पहले क्या रूल्स थे और अब क्या रूल्स हो गए। जस्ट नंबरिंग उनकी याद करवा दूं, क्योंकि अगर आपको नंबरिंग उनकी याद हो जाएगी रूल्स की, तो उससे आपको और इंटरेस्ट आएगा, लोगों को लगेगा कि आपको नॉलेज है, एंड आपको इजी होगा कोई भी चीज नए एक्ट में नेविगेट करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगा सबको, लेकिन ये पीपीटी के बेसिस पे अगर कोई भी पार्टिसिपेंट इस क्लास को देख रहा है तो वो काफी बड़ी चीज खो देगा। उसको अगर रूल्स जो है जस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी याद करने होंगे तो वो काफी डिफिकल्टी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप प्लीज पेन एंड पेपर ले आइए एंड जॉट इट डाउन द ओल्ड रूल्स विद द न्यू रूल्स। जब तक आप रूल्स नहीं लिखेंगे, जब तक आप जॉट डाउन नहीं करेंगे, तब तक आपको नए रूल्स याद नहीं होंगे, और अगर आपको नए रूल्स याद नहीं हुए तो आपके लिए नए एक्ट को ट्रांजिशन करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। मैंने इनकम टैक्स एक्ट में जो मेरा सेशन था उसमें की इंपॉर्टेंट सेक्शन सबको याद कराए थे, एंड दे वर सेइंग कि दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, दिस इज द कोर पार्ट। आप मेरे को 1-1.5 घंटा दे रहे हैं अपनी लाइफ का, अपने हम लर्निंग कर रहे हैं, तो आपको नए रूल्स, मेरा पर्पस है, वन ऑफ द पर्पस इज कि आपको रूल्स याद करवा दूं मैं। तो आई होप कि आपने पेन एंड पेपर ले लिया है, एंड पेन एंड पेपर लेने के बाद आप प्लीज जॉट डाउन करना शुरू कीजिए जो पीपीटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला एरिया है परक्यूजिट्स का। जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें चेंजेस आए हैं और जो इंपॉर्टेंट रूल बनने वाला है आगे, वो है परक्यूजिट्स। Currently in 1962 rules, Rule 3 was there for determining the value of perquisites. कैसे कैसे perquisites की वैल्यू है वो रूल 3 में थी, अब वो हो गए रूल 15 नए एक्ट में, दैट इज रूल 15। सिमिलरली डेप्रिसिएशन अंडर ओल्ड रूल वाज रूल 5। डेप्रिसिएशन में चेंजेस आए हैं अंडर रूल 5, जो बन गया है रूल 25, जिसमें रेट्स में चेंजेस आए हैं, ब्लॉक कॉन्सेप्ट में चेंजेस आए हैं। तो माय रिक्वेस्ट इज टू प्लीज राइट इट डाउन, ओल्ड रूल रूल 3 से रूल 15 परक्यूजिट्स, डेप्रिसिएशन रूल 5 टू रूल 25 न्यू रूल्स। आप लोगों को पता होगा सेक्शन 40 कैपिटल ए सब सेक्शन 3 जो कि एक्सेप्शंस, जो कि कैश पेमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, डिसअलाउंस ऑफ कैश पेमेंट करता है। जो डिसअलाउंस टू कैश पेमेंट करता है उसकी सर्टेन एक्सेप्शंस है अंडर रूल 6DD। तो वो एक्सेप्शंस जो है दोज आर वेरी सिमिलर इन द न्यू रूल्स एज वेल, दैट इज रूल 26। प्लीज जॉट इट डाउन अंडर रूल 6DD एक्सेप्शंस टू कैश पेमेंट, जो अब बन गया है रूल 26। फिर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें चेंज आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 44A के लिए था पुराने एक्ट में, जिसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलता था कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। रूल 6F, रूल 6F बन गया है रूल 46। रूल 46 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी होती थी? 3CA, 3CB, 3CD, ये जनरेट होते थे फॉर्म्स रूल 6G से। रूल 6G बन गए हैं रूल 47। अंडर द न्यू इनकम टैक्स रूल्स ये बन गए हैं रूल 47। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप नोट डाउन कर रहे हैं। आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि ये हम पीपीटी से देख लेंगे तो आई एम सॉरी, आपका लर्निंग का इम्पैक्ट कम हो जाएगा।
तो रूल 6G जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए था वो हो गया रूल 47। सिमिलरली सेक्शन 4 डिसअलाउंस है सेक्शन 14A में। सेक्शन 14A में कौन सी चीजों का डिसअलाउंस होता था? 14A में डिसअलाउंस होता था कि एक्सपेंडिचर नॉट इन इंकर्ड इन रिलेशन टू एग्जम्प्ट इनकम। तो उसकी मेथोडोलॉजी मेंशन होती थी 8D में। रूल 8D में उसकी डिटर्मिनेशन होती थी कि हाउ असेसिंग ऑफिसर हैज टू डिटरमाइन द डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 14A। वो नए रूल के हिसाब से हो गया रूल 14। अंडर द न्यू रूल दैट इज रूल 14। देन जो लोग मर्जर एंड एक्विजिशन में थे वैल्यूएशन के लिए, कोई शेयर वैल्यूएशन के लिए, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता था, या नेटवर्थ सर्टिफिकेट किट ग्रांट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता था रूल 11UA। ओल्ड एक्ट में, ओल्ड रूल्स में 11UA, जिसमें वैल्यूएशन की मेथोडोलॉजी प्रिस्क्राइब थी। 11UA का रूल हो गया है रूल 57। प्लीज जॉट इट डाउन, रूल 57। देन फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो फॉर्म 67 हुआ करता था, जिसमें फॉरेन टैक्स जो अगर हमने पे किया है उसका क्रेडिट लेने के लिए, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में क्रेडिट लेने के लिए जो रूल 128 था वो हो गया रूल 76। एफटीसी कंप्यूटेशन करने के लिए रूल 76। देन ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड जो रूल्स थे, ट्रांसफर प्राइसिंग के रिलेटेड रूल्स रूल 10B टू रूल 10D, जिसके अंदर आर्म्स लेंथ प्राइस को डिटरमाइन करते थे कि वो कप मेथड है या TNSS है, जो भी मेथोडोलॉजीज थी वो सारी प्रिस्क्राइब थी रूल 10B में। रूल 10D के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में होता था। रूल 10C के अंदर जो सिलेक्शन मेथोडोलॉजीज होती थी, वो सारी की सारी रूल्स जो है वो हो गए रूल 79 टू रूल 84। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स। कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं आए हैं इन रूल्स में, एग्जैक्टली सेम। बट प्लीज जॉट इट डाउन, रूल 79 टू रूल 84 ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स। इसी तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग में ही सर्टेन सेफ हार्बर रूल्स होते थे। उन सेफ हार्बर रूल्स मेंशन होते थे रूल 10TA से लेके रूल 10TH तक, जो कि हो गए रूल 86 टू रूल 98। वैसे ही गार की एप्लीकेबिलिटी, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जिस एरा में हम चल रहे हैं उस एरा में टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स जो पहले रूल 10U में होते थे वो रूल 127 टू रूल 131 के अंदर आ गए हैं, जिसमें ये हो गया है कि कहाँ कहाँ पे गार की एप्लीकेबिलिटी होगी, कहाँ कहाँ पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। तो जॉट इट डाउन, रूल 127 टू रूल 131। सिमिलरली सर्च एंड सीजर प्रोसीजर्स, जब सर्च होती है रूल 112, उसमें मेथोडोलॉजी थी कि सर्च कैसे होती है, सीजर कैसे होता है, सीजर को रिलीज कैसे करना है। अगर कोई चीज सीजर हो गई है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं पे हो रही है, तो रिलीज कैसे करना है, वो सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स हो गए रूल 148 में, नए एक्ट में। तो सर्च एंड सीजर जो रूल 112 में था वो हो गया रूल 148 में। सिमिलरली फेसलेस असेसमेंट जो आया है 2019 के बाद, फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद, उसको इन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब कर दिया है, रूल्स नए फॉर्म करे हैं रूल 176। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग लिटिगेशन में है या जो लोग स्क्रूटनी कराते हैं उन लोगों को रूल 176 को देखना होगा। वी विल कम इनटू रूल 176 क्या है, ज्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट नया रूल प्रोमलगेट हुआ है रूल 176 जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में आया है। तो आई होप कि आपने ये सारे रूल्स लिख लिए हैं, और अगर किसी को कुछ डाउट है इन रूल्स में तो दे कैन आस्क। किसी को अगर कोई डाउट है रूल्स के अंदर
तो दे कैन आस्क सीआईटी अपील्स के लिए फॉर्म 35 होता था, जो कि प्रोमुलगेट हुआ है रूल 45 से। रूल 45 से प्रोमुलगेट हुआ है फॉर्म 35, वो हो गया है रूल 167, एंड इवेंचुअली हम उसका फॉर्म भी याद करेंगे, फॉर्म 99, उसके बारे में आगे भी देखेंगे। आईटीएटी अपील के लिए, अगर आईटीएटी की अपील है तो फॉर्म 36 होता था, विच वॉज प्रोमुलगेटेड अंडर रूल 47, वो हो गया रूल 193। सीआईटी अपील में एडिशनल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो लोग अपील्स में है दे आर एक्वेटेंस ऑफ दिस रूल 46A, कि कौन कौन से इवेंट में आप एडिशनल एविडेंस का रूल पुट कर सकते हैं बिफोर सीआईटी अपील्स, जो आपने एओ को नहीं दिए। तो वो हो गया रूल 192। आपको रूल नंबर याद करने पड़ेंगे। जब आप रूल नंबर याद करेंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी क्लाइंट आपको या आप अपने प्रोफेशनल कलीग से बात करेंगे, देन दे विल फील कि हाँ ही इज एन एक्सपर्ट। बिना रूल याद करे, बिना नंबरिंग याद करे, ये एक्सपर्टीज लेना बहुत डिफिकल्ट है। ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और अगर दिस इज द एक्चुअल चांस, अभी इनिशिएट हुआ है रूल्स, अभी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स याद हो जाएंगे, नंबरिंग याद हो जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आगे चल के आपको ये चांस नहीं मिलेगा कि आपको रूल नंबरिंग याद करने के लिए। तो प्लीज जॉट इट डाउन। सीआईटी अपील्स का 167 है, आईटीएटी का है 193, एंड एडिशनल एविडेंस 192। टीडीएस सर्टिफिकेट्स जो हम देते हैं, उनका पहले रूल 31 था, जो हो गया रूल 215। टीडीएस रिटर्न्स, जो हम टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, उसका रूल 31A था, जो हो गया 219। एंड एसएफटी रिपोर्टिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के एरा में, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, जो कि रूल 114E था, जिसमें एसएफटी रिपोर्टिंग है, वो हो गया 237। तो रूल 114E इंटू रूल 237, कौन सी, देर आर एंटिटीज जिनको स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और उसके बाद ही, वो वाली रिपोर्टिंग के बाद ही वो एसएससी की एआईएस ट्रांजैक्शन में रिपोर्ट होगा। इन केस किसी ने एसएफटी रिपोर्टिंग नहीं करी, तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 50,000 फॉर ईच default. How can the default be happen? Default can happen in case reporting has not been done or wrong reporting has been done. 271 FAA of the Income Tax Act provides 50,000 penalty for each default. तो SFT reporting is very important, 237 under the new income tax rules, और अब इसकी eventually 237 में जो compliance है वो बढ़ती जा रही है, because government wants more and more specified transactions. AIS annual information statement after Finance Act 2021 becomes such an important thing. जो पहले रूल्स 114I के अंदर होते थे, वो इवेंचुअली हो गए रूल 245। इनकी इंपॉर्टेंस रूल्स की बढ़ती जा रही है डे बाय डे, पर डे इट्स इंपॉर्टेंस इज इंक्रीजिंग, AIS SFT, क्योंकि ये न्यू कॉन्सेप्ट है एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। पैन की रिक्वायरमेंट्स, पहले कुछ ट्रांजैक्शन की पैन की रिक्वायरमेंट होती थी 114B में, वो हो गया रूल 159। किन किन ट्रांजैक्शंस में पैन की रिक्वायरमेंट्स है, तो ये सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि जिसमें थोड़े की चेंजेस भी आए हैं। एंड ये रूल्स अगर आपको नंबर स्पेसिफिक याद होंगे, तो आपका इनकम टैक्स रूल्स 2026 को रेफर करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम अभी अगली स्लाइड्स में रेफर करेंगे, जैसे पैन रिक्वायरमेंट्स है, जो उसमें चेंजेस आए वी विल रेफर इट। अब जो इनकम टैक्स
इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल जो है उसमें जो पर्सनल टैक्सेशन में चेंजेस आए हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जो जनरल आम आदमी के लिए चेंजेस आए हैं, जो हम अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि ये चेंजेस है। एंड वो चेंजेस प्राइमरली इन्फ्लेशन बेस्ड चेंजेस है, कोई पॉलिसी चेंजेस नहीं है। एंड इन चेंजेस से जो मैंने देखा, अलाउंसेस और परक्यूसिट्स की जो वैल्यूएशन जो हुई है, जो चेंजेस हुए हैं, उनसे ओल्ड रिजिम जो है वो बेनिफिशियल हुआ है, जो विच इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, बट स्टिल उन्होंने इन्फ्लेशन को, इन्फ्लेशन बेस्ड चेंजेस करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस देता है उसकी सैलरी में, तो पहले ओल्ड रूल्स में 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड उसको अलाउंस मिलती थी, जो कि अब 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड हो गई है। दीज आर इन्फ्लेशन बेस्ड चेंजेस। अगर कोई हॉस्टल अलाउंस मिलता है किसी को सैलरी में, जो कि पहले 300 रुपीज पर चाइल्ड था, वो स्टूडेंट को वो स्टूडेंट को 300 से 9000 रुपीज पर मंथ हो गया है पर चाइल्ड। सिमिलरली जो फ्री मील्स है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री मील्स दे रहा है दैट इज बिलो 50 रुपीज पर मील, तो वो एग्जम्प्ट होता था, उसकी अलाउंस होती थी। वो अमाउंट अब इंक्रीज होके 200 रुपीज पर मील्स हो गई है। एंड सिमिलरली अगर कोई गिफ्ट दे रहा है विच इज नॉन कैश, तो जो पहले ओल्ड रूल में 5000 रुपीज की अलाउंस होती थी, वो अलाउंस अब 15,000 की हो गई है। ऐसे ही सर्टेन चेंजेस हुआ है परक्यूसिट्स में। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक कार दे रहा है बिलो 1600 सीसी, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार दे रहा है बिलो 1600 सीसी, तो अंडर ओल्ड रूल्स जो परक्यूजिट्स 1800 होते थे पर मंथ एंड 900 रुपीज अगर ड्राइवर भी दे रहा है, तो जो पहले 2700 रुपीज होते थे इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो अमाउंट अब 8000 रुपीज पर मंथ हो गया है। और अगर कार लीज पे दे रहा है अब 1600 सीसी, तो उसकी परक्यूजिट की वैल्यू जो 3300 रुपीज होती थी विद ड्राइवर, वो अब 10,000 रुपीज पर मंथ विद ड्राइवर हो गई है। तो जैसे अलाउंसेस बढ़ाई है, इन्फ्लेशन बेस्ड अलाउंसेस बढ़ाई है, इन अ वेरी सिमिलर मैनर परक्यूजिट्स के अमाउंट भी बढ़ा दिए गए हैं। ओवरसीज अगर टॉर इंप्लॉयर दे रहा है, तो वो पहले टैक्स फ्री होता था अगर एक्सपेंडिचर इज लेस देन 2 लाख रुपीज। अब उसकी अमाउंट, उसकी अलाउंस जो है वो बढ़ा दी गई है कि ओवरसीज स्टोर के जो ट्रीटमेंट है दैट वुड बी टैक्स फ्री इफ इट इज बिलो 8 लाख रुपीज। पहले जो 2 लाख था वो 8 लाख कर दिया है। तो काफी अच्छे अमाउंट से एज एन एम्प्लॉयर जो अलाउंसेस थे और परक्यूजिट से, वो अच्छे अमाउंट से बढ़ाए है, बिकॉज इन इन रूल्स में काफी टाइम से चेंजेस नहीं आए थे। तो ये मैंने आपको छोटा सा पर्सनल टैक्स के बारे में बताया कि अंडर ओल्ड रिजिम किस तरीके से हम अपने क्लाइंट्स को बता सकते हैं कि ये चेंजेस आए हैं। एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम, दिस स्लाइड वुड बी हेल्पफुल। अच्छा, ये जो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 26-27। अभी जो हम अगली रिटर्न भरने वाले हैं, जो हम जुलाई अगस्त में रिटर्न भरेंगे, उन रिटर्न्स में हम ये वाली स्लाइड नहीं एप्लीकेबल करेंगे, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2026। अब एक मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे आपको पैन की रिक्वायरमेंट है, पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट है। 114 बी के अंदर पैन कोटिंग की रिक्वायरमेंट थी, एंड वो बन गया है रूल 159 कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन में पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो पहले कोई भी अगर हम मोटर व्हीकल परचेज करते थे एक्सेप्ट टू व्हीलर, अगर हम कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं सेल करते टाइम या परचेज करते टाइम, तो हमें पैन रिक्वायर था देने के लिए।
अब वो हो गया है कि अगर हम 5 लाख से ऊपर का मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो ही हमें पैन रिक्वायर्ड है। बट पहले टू व्हीलर में एग्जम्पशन थी, अब अगर 5 लाख से ऊपर का टू व्हीलर भी परचेज करा तो भी आपको पैन देना पड़ेगा, या सेल करा तो भी आपको पैन देना पड़ेगा। इसमें ओनली एक एक्सक्लूजन डाला है कि अगर आपने ट्रैक्टर को सेल करा है देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग पैन बिकॉज ट्रैक्टर इज प्राइमरली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जिसमें इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पैन आपको देना पड़ेगा अब ओनली व्हेन व्हीकल इज अबव 5 लाख रुपीस। मोर और लेस ज्यादातर व्हीकल आज की डेट में 5 लाख से ऊपर के ही आते हैं, एंड मोटरसाइकिल्स रिलेटिवली फ्यू मोटरसाइकिल्स होगी जो कि 5 लाख से ऊपर की होगी, तो बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। अगर हम किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में 50,000 से ऊपर की पेमेंट करते थे वन टाइम पे तो हमें पैन की रिक्वायरमेंट होती थी। दैट अमाउंट हैज बीन इंक्रीज टू 1 लाख रुपीस। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में सेल डीड में हमें 10 लाख से ऊपर की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमें पैन की रिक्वायरमेंट होती थी। अंडर द ड्राफ्ट रूल 2026 वो रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई है 20 लाख से। और अगर कैश विड्रॉल होता था किसी भी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से, तो अगर वो मोर देन 20 लाख होता था, इक्वल टू 20 लाख एंड मोर देन 20 लाख, तो उस केस में पैन की रिक्वायरमेंट होती थी। वो रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दी है कि अगर 10 लाख ही अगर हमने निकाला है पैसा, 10 लाख और अबव 10 लाख रुपीस कैश विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस, तो हमें पैन देने की रिक्वायरमेंट है, पैन कोड करने की रिक्वायरमेंट है। तो दीज आर द चेंजेस विच हैव कम इन पैन कोटिंग रिक्वायरमेंट। कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस मैं बता देता हूं जो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। एसएफटी, अगर पहले ओल्ड रूल्स में एसएफटी ट्रांजैक्शन होती थी रूल 114E, रूल 114E में ये लिखा होता था कि सब रजिस्ट्रार को अगर उसने प्रॉपर्टी रजिस्टर करी है अबव 30 लाख रुपीस, 30 या अबव 30 लाख रुपीस, तो उसे वो इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती थी। वो एसएफटी इंफॉर्मेशन उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती थी और वो एआईएस ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट करता था बोथ फॉर सेलर एज वेल एज परचेजर। अब वो वाली जो लिमिट है वो हो गई है 45 लाख रुपीस। प्रॉपर्टी परचेज करते या सेल करते टाइम पे रजिस्ट्रार को 45 लाख रुपीस की लिमिट अब हो गई है। मेरे ख्याल से इस लिमिट को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। 30 लाख रुपीस या 45 लाख रुपीस डज नॉट मैटर, उनको 30 का 30 ही रखना चाहिए था। बट एनीवेज एक इंपॉर्टेंट चेंज आया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कि पहले रूल 6F में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कहते थे वो मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कहते थे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले मैनुअल मेंटेन करने के लिए जो होता था अब मैंडेटरी हो गया है कि आपको डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। आप मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन कर सकते, डिजिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया है। एंड कौन से रूल में हुआ है? वो रूल 46 के अंदर हुआ है। आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू रूल्स। तो पहले ओल्ड रूल्स तो मुझे याद थे रूल 6F, अब वो नए रूल हुआ है रूल 46। तो रूल 46 में मैंडेटरी हो गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि किस तरीके से सिस्टम जो है ऑटोमेट हुआ है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ टैक्स प्रोफेशनल्स हमारे सिस्टम किस तरीके से ऑटोमेट हुए हैं। पहले भी फ्लैगिंग सिस्टम होता था, अब क्या है रिटर्न फाइल करेंगे। आई एम अज्यूमिंग अभी तक फॉर्म्स नहीं आए हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि जब फॉर्म आएंगे अंडर न्यू रूल्स 2026 रूल्स के जो फॉर्म्स आएंगे उसके अंदर, उन फॉर्म्स के अंदर ऑटोमेटिकली डिफरेंस डिटेक्शन होगा। जो लोग अभी भी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए अभी भी डिफरेंस डिटेक्शन आ रहा है। जैसे कि मैं वेबटेल यूज करता हूं तो मेरे में अभी भी डिफरेंस डिटेक्शन आ रहा है। अभी जो लोग नॉर्मल फॉर्म मैनुअली फॉर्म फिल कर रहे हैं इनकम टैक्स की साइड से उनको डिफरेंस डिटेक्शन नहीं आता। फॉर एग्जांपल 26AS उसने डाउनलोड किया
एंड टीडीएस की डिटेल उसने मैन्युअली भरी, तो देर माइट बी पॉसिबल कि उसमें रेक्टिफिकेशन मिसमैचेस हो, बट रिटर्न वुड बी एक्सेप्टेड। बट नाउ इन 2026 जो भी फॉर्म्स 2026 रूल्स के थ्रू आएंगे, उन फॉर्म्स में ऑटोमेटिकली डिफरेंस डिटेक्शन जो है आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो लेस चांसेस ऑफ एरर प्रोन होंगे। अगर एआईएस में सपोजिंगली एक केस मैंने जिसमें दिया है कि एआईएस में 15 लाख की इनकम है एंड रिटर्न 14.5 लाख है, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम्स जो है वो ऑटोमेट करने की कोशिश करी है। तो अब इससे जो रिटर्न फाइलिंग, जो पर्सन्स रिटर्न फाइलिंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो इसमें जो हमें सीखने को मिला है कि जो भी नए फॉर्म्स आएंगे उसमें हमें नंबर फिल नहीं करना। अब हमें ऑटो रिकंसिलिएशन से डिफरेंसेस बताने हैं कि ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगा डाटा फ्रॉम एआईएस ट्रांजैक्शंस या फ्रॉम जीएसटी ट्रांजैक्शंस। टर्नओवर जीएसटी जो है बुक्स में आ रही होगी एंड टर्नओवर जो जीएसटी में है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाएगी, एंड आवर जॉब इज टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस। पहले गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड डाटा टू देम पहले के टाइम पे, आज के टाइम पे दे ऑलरेडी हैव डाटा, दे जस्ट वांट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू एक्सप्लेन दैट दीज आर द डिफरेंसेस which are coming. They don't require chartered accountant for filing the numbers anymore. तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 के थ्रू नजर आ रहा है। अब अगर मैं चीज बताऊं आपको, तो नया रूल आया, रूल 176 फेसलेस असेसमेंट के लिए। जो लोग असेसमेंट के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उनको पता होगा कि देयर वाज अ सेक्शन 144। सेक्शन 144 वाज अ सेक्शन जिसके बेसिस पे आप फेसलेस असेसमेंट करते थे। तो वो सेक्शन अब नहीं अब वो सेक्शन उसको रूल्स के अंदर डाल दिया है। उस सेक्शन में सारी इंफॉर्मेशन होती थी कि किस तरीके से केस जो है वो फेसलेस असेसमेंट यूनिट में जाएगा, किस तरीके से ऑटोमेटेड सेल के थ्रू वो रिफ्लेक्ट होगा। किस तरीके से ये ऑटोमेटेड सेल के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा, किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूल्स है। तो वो सारे रूल्स अब रूल 176 में डाल दिए हैं। मैंने रूल 176 को पढ़ा एंड आई फेल्ट इट इज अ क्लियर मिरर इमेज ऑफ रूल सेक्शन 104B ऑफ द 1961 एक्ट। 144B जो कि प्रोसीजरल था, अब उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेचर में डाल दिया। दैट इज अ गुड स्टेप, बिकॉज उसके अंदर पहले भी सारे सिर्फ प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन थी, कोई सब्सटैंटिव लॉ नहीं था। तो फेसलेस का असेसमेंट रूल आया, रूल 176। किसी को नोट डाउन करना है तो देखे नोट डाउन, ये आगे चल के असेसमेंट्स में बहुत काम आएगा। रूल 176 जिसके अंदर प्रोसीजरल है, एंड अगर इन प्रोसीजरल में कुछ गैप आया, असेसमेंट इन प्रोसीजरल के थ्रू नहीं हुई, तो देयर वुड बी इरेगुलरिटी। इट वोंट बी इलीगैलिटी, देयर वुड बी इरेगुलरिटी, एंड द ट्राइब्यूनल और द कोर्ट्स विल रिमांड द प्रोसीडिंग बैक। अब हम मेजर अमेंडमेंट पे आते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, कि क्या क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस आए हैं, एंड हम उसके बारे में समझते हैं कि ये चेंजेस जो है जो इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीपीटी मांग रहे हैं विल डेफिनेटली शेयर द पीपीटी, नो वरीज अबाउट इट। अब इंपॉर्टेंट चेंजेस हम समझते हैं कि क्या टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। तो दिस इज ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट है। ये ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट निकली है, और एक हम खोलेंगे ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट। ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट आप सब लोगों ने भरी हुई होगी, फॉर्म 3CD आप सब लोगों ने भरा हुआ होगा।
फॉर्म 3CD जो है वो हो गया है फॉर्म 26। ये नोट डाउन कर लीजिए, आपको आगे चल के फॉर्म 26 ही बोलना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि फॉर्म 26 कब एप्लीकेबल होगा। फॉर्म 26 अकॉर्डिंग टू मी वुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम टैक्स ईयर 2026-2027। देखिए ये इतना न्यू लॉ है कि किसी के लिए भी एग्जैक्ट क्या होगा ये बता पाना अभी काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट इवन अ लॉ, दिस इज जस्ट अ ड्राफ्ट वर्जन। एंड आई एम श्योर जो लोग इस सेमिनार के असिस्टेंस दे रहे हैं उनको डेफिनेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, या डेफिनेटली दे कैन एनविसाज की हाउ द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि व्हाट वुड बी इन फ्यूचर। आपको फ्यूचर प्रैक्टिकलिटी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पहले फॉर्म 3CD था और अब फॉर्म 26 है। पहले फॉर्म 3CD में 44 क्लॉजेस थे, अब फॉर्म 26 में 53 क्लॉजेस है, इनफैक्ट 55 क्लॉजेस है। क्या से कैसे कौन कौन से क्लॉजेस बढ़ गए हैं वो हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें जो है ना जिसमें मेजर चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि फॉर्म 3CD पहले 3 फॉर्म होते थे, एक होता था फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD। फॉर्म 3CA ऑडिट ऑब्जर्वेशन होती थी उन एंटिटीज के लिए जिनका विच आर सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। तो आप पहले फॉर्म 3CD भरते थे एंड देन फॉर्म 3CA भरते थे। फिर एक होता है फॉर्म 3CD एंड फॉर्म 3CB, वो उनके लिए होता है जिनको विच आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ, उनको फॉर्म 3CB भरना है। आई होप मोस्टली ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस का एक्सपोजर है दे न्यू दिस थिंग। मैंने बेसिस आपको बताया है, पहले फॉर्म 3CD भरते हैं, फिर फॉर्म 3CA भरते हैं या फॉर्म 3CB भरते हैं बेस्ड ऑन द ऑडिट रिक्वायरमेंट। करंटली आगे चल के टैक्स ईयर 26-27 से ओनली फॉर्म 26 वुड बी देयर। फॉर्म 26 इंक्लूड फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD। अब आते हैं कि कौन सा सेक्शन इन्हें गवर्न कर रहा है, कौन सा सब्सटैंटिव लॉ है। तो पहले का आपको याद होगा सब्सटैंटिव लॉ होता था, डिटरमाइन होता था सेक्शन 44AB से, अब वो डिटरमाइन होता है सेक्शन 63 से। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 63 डिटरमाइन करता है सब्सटैंटिव लॉ विच इज मिरर कॉपी टू सेक्शन 44AB। नो पॉलिसी चेंज हैज कम। जो पहले 3CD के ऊपर अगर मैं सिर्फ बात करूं तो देयर आर 2 पैराज, 2 पार्ट्स इन इट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को मिला के 44 क्लॉजेस होते थे, अब देयर आर 4 पार्ट्स। नए नए फॉर्म 26 में 4 पार्ट्स है, पार्ट ए बी सी डी। पार्ट ए बी सी डी जिसमें पार्ट सी जो है वो फॉर्म 3CA है और पार्ट डी जो है वो फॉर्म 3CB है। तो वही मेजरली 4 पार्ट बन गए हैं 26 में, ए बी सी डी। ए जनरल इंफॉर्मेशन है, बी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो हम 3CD में भरते हैं वही है, सी 3CA वाली ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड डी 3CB वाली ऑडिट ऑब्जर्वेशन। तो आइदर यू हैव टू फाइल पार्ट सी और पार्ट डी, बोथ कैन नॉट बी फाइल्ड इन फॉर्म 26। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब इसमें मैं अगर आपको मेजर चेंज दिखाऊं तो पहले एक लीनियर क्लॉज होता था। लीनियर क्लॉज मतलब लीनियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होती थी। क्या मतलब लीनियर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का? लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म का मतलब ये है, दिस इज द ओल्ड 3CD, ये सब आप लोगों ने भरे हुए होंगे, आई होप कि आप लोगों ने ये फॉर्म भरे हुए हो। तो ये फॉर्म में पार्ट ए में एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको मेंशन होती थी, ये 1 से लेके 8A तक जनरल इंफॉर्मेशन मेंशन होती थी। एंड देन पार्ट बी आता था और पार्ट बी के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मेंशन होती थी। ये क्लॉज 44 तक जाता था एंड लीनियर आपको भरना होता था, इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं होती थी।
44 तक ही जाएगा, क्लॉज 44 तक, ये क्लॉज 44। नए रूल्स में पार्ट ए जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जिस पर्टिकुलर ऑफ द सेसी, सिमिलर वैसी इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। पार्ट बी आपकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, एंड इट हैज बीन फ्रेगमेंटेड, इट हैज बीन बाइफर्केशन, देयर हैज बीन डाइकोटमी बाय सेइंग कि दीज आर द पार्ट बी के अंदर सब पार्ट है, सब पार्ट ए इसके अंदर जनरल इंफॉर्मेशन है, सब पार्ट बी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताता है। सारे क्लॉज इकट्ठे कर लिए, जो पहले क्लॉज सारे फ्रेगमेंटेड थे, जो पहले हैफेजर्ड क्लॉजेस थे, अब वो सारे सिस्टमैटिक वे में अंदर आ गए हैं। पार्ट सी पर्टिकुलर्स ऑफ रिसिप्ट, मोर और लेस जो क्लॉजेस है उसमें चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ जो चेंजेस है वो आई विल डिस्कस विद यू, बट अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से पार्ट बी को फ्रेगमेंट करा है डिफरेंट पर्टिकुलर्स में। पर्टिकुलर ऑफ एक्सपेंसेस, प्रायर पीरियड आइटम एफ, ये के तक है, इनको इतने टीडीएस का अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग है, एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ये अलग है। तो जो पहले लीनियर मैनर के अंदर 1 से लेके 44 तक थे, अभी पार्ट बी जो है जो 9 से लेके 53 तक है, उसको फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब हम अगली स्लाइड अगर देखें तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है सेक्शन की रेफरेंसेस। ऑब्वियसली जो सेक्शन की रेफरेंसेस है वो पहले वाले इनकम टैक्स ऑडिट में ओल्ड सेक्शन नंबर्स थे, जो अब नए एक्ट में न्यू सेक्शन नंबर्स आ गए हैं। तो हमें सेक्शन मैपिंग फेमिलियरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ये कौन सा सेक्शन की बात कर रहा है, तो हमारे लिए फॉर्म 26 को फिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब नए सेक्शन की मैपिंग कैसे होगी वो मैं आपको कुछ अगली स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि इस मैनर में आपको नए सेक्शन की मैपिंग करनी है। अब इसमें एक चेंज आता है, अब हम बताते हैं कि क्या क्या चीजों के चेंजेस आए हैं। अभी तक हमने थोड़ा सा इसको ब्रॉडर एनालिसिस करके समझ लिया है कि क्या फॉर्म 26 है, कैसे फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD है। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि क्या क्या ब्रॉडर चेंजेस आए। सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन करना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का क्लाइंट है, क्योंकि अब एक ही फॉर्म आ गया तो हमें सिलेक्शन करना होगा। या तो आपको पार्ट ए बी सी भरना होगा, या फिर आपको पार्ट ए बी डी भरना होगा। तो जब हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज जस्ट माई इमेजिनेशन कि इस तरीके से होगा। जब हम आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे तो या तो पार्ट सी या पार्ट डी जो है वो अपीयर नहीं होगा। तो पहले हमें अब सिलेक्शन करना होगा कि क्या ABC है या ABD है, ऑडिट हो रहा है अदर लॉ में या नहीं हो रहा है। अब उसके बाद जो चेंजेस इसमें आए हैं वो बड़ा मेजर चेंज आया है, जो आई डोंट नो कि ये इतना मेजर चेंजेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा। पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो एक क्लॉज होता था, क्लॉज 11। क्लॉज 11 किस चीज का होता था? बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी मेंटेन्ड है कि नहीं है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है तो वो कहाँ पे रखी हुई है उसकी लोकेशन जानते थे, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है। अब जो क्लॉज है, क्लॉज 14 के अंदर है, ये पार्ट बी के अंदर आता है जो 13 के अंदर। इस क्लॉज के अंदर आपसे 14B में वो ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर रहे हैं। आपको अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताना होगा कि आप टैली यूज कर रहे हैं, बिजी यूज कर रहे हैं, या कौन सा ABC सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जो आपको पहले कभी बताने की जरूरत नहीं थी। चलिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 14 का C पार्ट ये कहता है, दिस इज वेरी, मतलब आई डोंट नो कि क्या, बिकॉज आई एम अ लॉयर, तो क्या 19(1)G का वायलेशन होगा क्या? कि बिकॉज दिस इज वेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है।
आपके कौन से आईपी एड्रेस में वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो आपको बताना है, और वो कौन सी कंट्री में है। पहले आपको लोकेशन बतानी होती थी, अब आपको अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस देना है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ये बताना है कि मेरे क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस आईपी एड्रेस में स्टोर है, मेरे को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है। मुझे ये बताना है कि उसका जो बैकअप है वो कहां पर है, वो इंडिया में है, वो कौन सी कंट्री में है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे देनी है। और उसका बैकअप जो है, बैकअप शुड बी इन इंडिया। रूल 46 नए रूल्स में मैंडेट करता है कि आपका बैकअप या आपका आईपी एड्रेस शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया। आप बाहर ले जा नहीं सकते डाटा, बाहर ले जाए तो दैट शुड बी एन एडिशनल बैकअप, बट द बैकअप शुड बी इन इंडिया। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, they can audit, they can investigate only the books of accounts. Those backup, those cloud system are in India. तो इससे इससे इनका फोकस है कि डाटा लोकलाइजेशन करना है, मेरे को डाटा बाहर किसी यूरोपियन कंट्री या वेस्टर्न कंट्री में नहीं लेके जाना है। जो डिजिटल ऑडिट है वो इजीली हो पाएगी बिकॉज आप अपना आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वाया आईपी एड्रेस दे कैन इजीली कैच कैसे कैसे जो है ट्रांजैक्शंस फ्लो हो रही है। एंड फॉरेंसिक ऑडिट कैपेबिलिटीज जो है वो काफी हाई लेवल पे बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो आई डोंट नो, अभी दीज आर ड्राफ्ट रूल्स, बट दीज आर फेयरली ड्रैकोनाइन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आर्टिकल 19 का वायलेशन है। राइट टू प्राइवेसी में सारी चीजें अपनी प्रोवाइड कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मी आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर इज वेरी प्राइवेट। चलिए, अब इसमें आता है डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल पहले रूल 18 के अंदर, क्लॉज 18 के अंदर होता था। अब जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल 36 के अंदर आता है। और डेप्रिसिएशन जो है वो नीचे शेड्यूल इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ये डेप्रिसिएशन शेड्यूल है जो कि पहले भी था, लेकिन इसमें एक चेंजेस जो मेरे को लगता है वो आएगा कि ये जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है दैट वुड बी लिंक्ड विद योर इनकम टैक्स फॉर्म्स, और वहां से ये ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन शेड्यूल उठा लेगा। तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म में अगर आपने शेड्यूल भरा है उससे आप डेप्रिसिएशन शेड्यूल ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये बात मैं कैसे बोल रहा हूं, ये बात मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये बात मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं क्योंकि जो नोट्स टू अकाउंट्स है इसके अंदर नोट्स जो प्रोवाइड करे उसमें बोला है कि वी विल ट्राई टू ऑटोफिल, वी विल ट्राई टू ऑटोफिल द मेजर डिटेल्स। आपको सिर्फ आंसर देना है एंड देन वी विल ऑटोफिल द डिटेल्स। तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल जो है वो अब ऑटोफिल हो जाएगी विद इनकम टैक्स, वुड इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, ये फॉर्म 26 का नोट्स में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म वुड बी प्रीफिल टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो आपको मल्टीपल टाइम्स इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो फिल हो जाएगी, ऑटो मैपिंग विद द रिटर्न शेड्यूल हो जाएगा। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये होगा कि नहीं होगा, बट आई हैव रेड समवेयर इन सम आर्टिकल कि ये गवर्नमेंट की प्लानिंग है। एमएसएमई की जो रिपोर्टिंग है, जो अभी नई रिपोर्टिंग आई थी, ये नई रिपोर्टिंग आई थी रूल 20 क्लॉज 22 में, जो कि इसी साल से एप्लीकेबल थी। लोगों को बहुत परेशानी हुई कि कैसे एमएसएमई की रिपोर्टिंग करनी है। वो रिपोर्टिंग की जो लैंग्वेज थी वो काफी डिफिकल्ट थी। अब जो फॉर्म 26 में उसकी जो लैंग्वेज है वो रिलेटिवली सिंपल है, और उसमें
इतनी प्रॉब्लमैटिक चीजें नहीं है। ये है एमएसएमई की जो रिक्वायरमेंट है कि अमाउंट दिस रूल क्लॉज 33 कि अमाउंट नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमईडी एक्ट, और जो अमाउंट जो है वो डेबिट हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि टू द एक्सटेंट डिसअलाउड होते हैं 37(2)(g के थ्रू। तो ये एमएसएमई की रिक्वायरमेंट्स थी जो कि अब रिलेटिवली काफी सिंपल हो गई है। अब आपको ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है एमएसएमई एक्ट में, और कितना इंटरेस्ट ऐसा है जो हमने डेबिट करा है लेकिन हमने उसका आज की डेट में हम उसका डिसअलाउड हो रहा है, और आगे कौन से अलाउड हो जाएंगे। तो इसकी लैंग्वेज में काफी सिंप्लीफिकेशन आया है जो कि उनपे क्रिटिसिज्म था। आईसीडीएस के जो रिपोर्टिंग है, आईसीडीएस पहले क्लॉज 13 होता था जिसमें आईसीडीएस की हमें रिक्वायरमेंट्स बतानी होती थी। अब आईसीडीएस फॉर्म 26 में आईसीडीएस शेड्यूल के अंदर मेंशन कर दी है ज्यादातर चीजें, मीनिंग देयर बाय आपको फॉर्म छोटा कर दिया है। अगर आपकी एप्लीकेबिलिटी है देन यू विल राइट यस एंड देन यू हैव टू फिल द शेड्यूल, तब शेड्यूल शो होगा। पहले जो चीजें थी वो आपको वहीं पे ही शो होती थी एंड यस एंड नो का ऑप्शन नहीं होता था, और वो अगर होता था तो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो लोग यूज करते थे। अब जो रिक्वायरमेंट है फॉर्म छोटा कर दिया है, एंड यहाँ पे आपको सिंपल ये बोलना है कि ये जो चीज है ये यस है कि नो है, और उस तरीके से शेड्यूल ओपन हो जाएगा। सेम एज डेप्रिसिएशन या कोई भी प्रायर पीरियड आइटम है, आपको सिंपली यहाँ पे यस एंड नो लिखना है और उस हिसाब से शेड्यूल उसका ओपन हो जाएगा। तो ये आईसीडीएस में आए लोन्स लोन्स और कैश ट्रांजेक्शन्स, जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनमें काफी चेंजेस आए हैं। उनमें क्या चेंजेस आए हैं, पहले रूल 34 के अंदर हम लिखते थे कि ये लोन्स एंड ये कैश ट्रांजैक्शन है जो कि स्पेसिफिक कैश ट्रांजैक्शन है, जो 269 एसएस 269 टी एंड 269 एसटी के थ्रू आती थी। अब जो लोन ट्रांजैक्शन है उनकी रिपोर्टिंग देखते हैं कैसे हो गई है। उनकी रिपोर्टिंग हो गई है लोन, उनकी रिपोर्टिंग सिंपली हो गई है कि आपको यस और नो फिल करना है। जब आप यस और नो फिल करेंगे कि ये इसकी रिपेमेंट हुई है कि नहीं हुई है कैसे, फिर उसके बाद आपको एक इसमें नेचर ऑफ द कोड बताना है कि क्या नेचर ऑफ द कोड है, क्या उसकी पहले आपको ये मेंशन नहीं करने होते थे कोड नंबर, अब ए से लेके एल तक आपको मेंशन करना होगा कि कैसे उसकी नेचर है रिसिप्ट की और रीपेमेंट की। क्या वो कैश पेमेंट है तो आपको ए कोड मेंशन करना होगा, बी कोड मेंशन करना होगा, ये ए से लेके एल तक आपको कोड्स मेंशन करने होंगे। तो ये जो रूल 45 है, रूल 45 में जिसमें मेंशन होता है कि ऑल द लोन डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम इन एक्सेस ऑफ 185 सेक्शन 185 के थ्रू, जो कि 185 होता है 269 एसएस या 269 टी, तो उसका मेंशन करना होगा कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे है एंड रेफर रूल 8, और के अंदर आपको नेचर बताना होगा ए से लेके एल तक का। तो दिस इज अ न्यू चेंज विच हैज कम। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है एसएफटी रिपोर्टिंग का। मैंने आपको बताया था पहले रूल 214 ई नए पुराने एक्ट में एसएफटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती है। जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस है जो कि आपने रिकॉर्ड करी होती है, जो कि आपने ट्रांजैक्ट करी होती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। तो अब वो एसएफटी की इंफॉर्मेशन जो है, जो एसएफटी की इंफॉर्मेशन है वो का क्लॉज 46 आ गया है जिसमें आपको 3CD में मेंशन करना है। 3CD में मेंशन करना है कि ये क्लॉज कौन सी, मतलब कौन कौन से आपने एसएफटी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है।
जिससे कि वो आप पे, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो दे कैन इजीली इम्पोज पेनल्टी ऑन यू। तो वो टैक्स ऑडिटर को बताना है कि ये इंफॉर्मेशन थी, ये डिपॉजिटरी रिक्वायरमेंट थी जो कि एसएफटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी, ये इतनी इतनी मैंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करी है जो कि मैंने, मेरी रिपोर्ट होनी चाहिए थी, और इतनी मैंने कर दी उन रिपोर्टेबल में से। तो ये अब एज अ टैक्स ऑडिटर के स्कोप में डाल दिया है कि अगर एसएफटी रिपोर्टिंग में कोई रिपोर्ट करनी थी और वो नहीं हुई है, तो वो टैक्स ऑडिटर को, डिपार्टमेंट को देनी होगी वो इंफॉर्मेशन। तो दिस इज द न्यू चेंज, रूल 46, क्लॉज 46 ऐड किया, जिसमें अब एसएफटी रिपोर्टिंग भी टैक्स ऑडिटर्स को बतानी होगी। टीडीएस, टीडीएस के जो प्रोविजंस है उसमें चेंजेस आए हैं। टीडीएस पहले क्लॉज 34 के अंदर होते थे, और वो वाले जो चेंजेस है पुराने एक्ट में, आप क्लॉज 34 में अगर आप चेंजेस डालते थे तो उसको कोई क्रॉस वेरिफिकेशन का मेथडोलॉजी नहीं थी, आपको यहाँ पे चैप्टर 17B में चीजें डालनी होती थी। अभी भी आपको सिंपल वो डालनी है, बट देर आर नाउ प्रोसीजर्स फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन फॉर टीडीएस। तो आप सिंपली अगर कोई एरर है तो वो आपको तभी बता देगा कि ये एरर है, और आपको उसमें यस करना होगा, देन वो रेलेवेंट शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। टीडीएस का रेलेवेंट शेड्यूल तभी ओपन होगा जब आप उसमें यस करेंगे। एंड वो जो शेड्यूल्स है उसमें जो इंफॉर्मेशन है, दोज आर वेरी सिमिलर टू जो पहले रूल क्लॉज 34 में थी, वही अब क्लॉज 50 में आ गई है। तो देर आर नो चेंजेस एज सच, बट एज पर द इंफॉर्मेशन, या जितना मैंने स्टडी करा, बिकॉज दिस इज वेरी नैंसेंट, अब यहीं पे ही दे वुड बी एबल टू क्रॉस वेरीफाई कि आपने डिटेल ठीक भरी है कि नहीं भरी है, एंड दे वुड बी एबल टू इंटीमेट यू कि आपने ये डिटेल गलत भरी है अभी की अभी। अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के जो थे पहले, जो चीजें थी वो सारी की सारी इन्होंने एक नए क्लॉज डाले जिसके अंदर इन्होंने चीजें मांग ली। अब हम नया क्लॉज देखते हैं क्या डाला है पेज 26 के अंदर। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के स्केड्यूल्स है। अब क्लॉज 40 में हमें ये बताना है कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग हो रहा है तो उसकी प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या है, चाहे वो डोमेस्टिक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन प्राइसिंग हो या फिर वो इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग हो। तो आपको उसकी डिटेल अब 3CD में देनी है, जो कि पहले नहीं देनी होती थी। अगर अगर आप लोगों को, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वुड बी अवेयर कि पहले एक सेक्शन होता था, सेक्शन 94B। सेक्शन 94B होता है कैपिटल थिनिंग का। मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 30% से ज्यादा है, जितना आपका एबेटा है, उससे अगर आपकी इंटरेस्ट पेमेंट 30% से ज्यादा है, तो इसका मतलब कि आपने, डिपार्टमेंट फील कि आपके जो लोन्स हैं दे आर नॉट जेन्युइन, तो दे विल डिसअलाउ दोज इंटरेस्ट। तो उसकी रिपोर्टिंग जो है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में होगी कि आपको बताना होगा कि मेरा इंटरेस्ट कितना एक्सपेंडिचर है और मेरा एबिटा से 30% ज्यादा कितना है वो। तो जो पहले 94B का कोई मैकेनिज्म नहीं होता था चेकिंग करने का, कैपिटल थिनिंग का, वो कैपिटल थिनिंग का मैकेनिज्म जो है अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर्स को डाल दिया गया है। दिस इज द ड्राफ्ट रूल्स, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग। अच्छा, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जो भी बाय गॉड, मतलब आप देखिए क्लॉज 43 नए एक्ट, नए फॉर्म 26 में क्लॉज 43 सेज फॉर्म 145, मीनिंग देयर बाय कि कोई भी रेमिटेंस, मतलब फॉर्म 15 CA-CB की जो भी रेमिटेंस होती है, फॉरेन की रेमिटेंस जो होती है, जो हमें अभी तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, आज की डेट में अब टैक्स ईयर 26-27 से टैक्स ऑडिटर को 15 CA-CB की रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी हो गई है कि वो नेचर और रेमिटेंस क्या है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है, कितने अमाउंट है।
तो 15 CA-CB की रिपोर्टिंग जो पहले नहीं करनी होती थी, तो आज की डेट में टैक्स ऑडिटर्स को क्लॉज 43 में 15 CA-CB की रिपोर्टिंग करनी है, जो कि हो गया फॉर्म 145। ये मेजर चेंजेस आए हैं, स्पेशली ग्लोबल टैक्स एनालिटिक्स के बेसिस पे, कि किस तरीके से अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो बहुत ही इजीली टेक केयर हो पाएगी वाया फॉर्म 26। अब इसमें एक जो बड़ा मेजर चेंज आया है वो आया ऑडिट क्वालिफिकेशन इम्पैक्ट, कि किस तरीके का ऑडिट क्वालिफिकेशन था जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में इम्पैक्ट आया है। अगर आप लोगों को जो यहाँ पे एक्सपीरियंस ये होंगे है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स है, दे मस्ट बी नोइंग, उन्होंने बहुत सारे फॉर्म 3CA एंड फॉर्म 3CB भरे होंगे, जिसमें उन्हें क्वालिफिकेशन बतानी होती थी एंड क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट बताना होता था कि कैसे किस किस तरीके से ये क्वालिफाई होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या मेथडोलॉजी चेंज करी है क्वालिफिकेशन इम्पैक्ट के लिए। अब आज की डेट में सिर्फ सिचुएशन ये नहीं रह गई है कि आपको ने बता दिया कि क्वालिफिकेशन एडवर्स है, या डिस्क्लेमर दे दिया, या एम्फेसिस ऑन मैटर दे दिया है। ये अब आपको ये बताना है कि ये जो क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, इससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या इम्पैक्ट आना है, कितना इससे इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, कितना इससे इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, या कितना इससे नेट इम्पैक्ट आना है, और अपने रिमार्क्स देने हैं। तो देखिए, तो जो पहले सिंपल आपको ऑडिट क्वालिफिकेशन देनी होती थी, आज की डेट में आपको वो इंपैक्टफुल ऑडिट क्वालिफिकेशंस देनी है और आपको क्वांटिफाई करके बताना है कि इससे इंपैक्ट कितना है। जस्ट वी कैन नॉट से कि ऑडिटर जो है कि भाई कि डेटर एंड क्रेडिटर आर नॉट रिकंसिलिएबल इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इस तरीके से हमें सिंपल ऑब्जर्वेशन देके वी कैन नॉट स्टे अवे, या we cannot hide ourselves. We have to, this is the proposed form 26, जिसमें हमें इम्पैक्ट बताना है कि इस क्वालिफिकेशन से इतना इम्पैक्ट है, सो दैट जब असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी करेगा, he may be able to easily determine the impact of such qualification. तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट के साथ आपको ये क्वालिफिकेशंस जो है वो देनी है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज आई है जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में बोला है। पहले बड़ा सिंपल सा होता था, क्लॉज 12 पुराने 3CD फॉर्म में क्लॉज 12 बहुत ही सिंपल होता था, जिसमें आपको ये बताना है कि आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपने अपनी बुक्स जो है वो ली है कि नहीं ली है। अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पे बुक्स ली है तो आपको सिंपल उसको इंडिकेट करना होता था कि अमाउंट एंड रेलेवेंट सेक्शन। बट अब सिचुएशन इज समवट डिफरेंट। अब सिचुएशन क्लॉज 19 पेज नंबर 3 में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको ये शो करना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में आपको ये बताना है कि आपने पहले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया है कि नहीं लिया है। जैसे सिमिलर इसका यही पैटर्न रहा है, आपको पहले यस एंड नो में बताना है एंड देन वो स्केड्यूल खुलेगा। वो किस तरीके से स्केड्यूल खुलेगा, वी हैव टू वेट फॉर द यूटिलिटी कि कैसे वो फॉर्म्स आएंगे। तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अब आपको सेक्शन मेंशन करना होगा, और आपको ये मेंशन करना होगा कि कितना अमाउंट जो है हमने इस वाले सेक्शन के थ्रू प्रिजम्पटिव बेसिस पे लिया है। आपको सेक्शन मेंशन करना होगा और उससे रिलेटेड का जो प्रॉफिट एंड गेन आपने डिराइव किया है वो मेंशन करना होगा। तो जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है उसका स्केड्यूल जो है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड। अब मैंने आपको बताया था कि सेक्शन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो फॉर्म 26 में नए सेक्शन है वो कौन कौन से सेक्शंस है जो आपको इंपॉर्टेंट याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इजीली फॉर्म 26 फिल कर पाए। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैंने मेंशन की है, दीज आर नॉट ऑल द सेक्शंस। फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग फॉर्म 26 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस
आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे ताकि आपको इजीली आप फिल कर पाओ, आपको डिफिकल्टी ना आए पहली बारी ट्रांजिशन में। तो उसका सेक्शन है सबसे पहला, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, पीपीटी आपको मिलेगी, बट ये आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। सबसे पहला जो ओल्ड में होता था सेक्शन 44 ए बी, वो हो गया सेक्शन 63। इसमें एक चीज याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिमेम्बरेंस है सो दैट यू विल बी एबल टू इजीली फिल आउट द फॉर्म। देयर इज नो पॉलिसी चेंज इन दो सेक्शन। जो पहले सेक्शन होता था 269 एसएस एंड 269 टी, वो सेक्शन हो गया सेक्शन 185। 269 एसएस एंड 269 टी जो कि मोड ऑफ पेमेंट डिटरमाइन करता था, कैश ट्रांजैक्शन की, लोन्स एंड एडवांसेस की, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की, वो हो गया सेक्शन 185। जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो कि इनएलिजिबल थी या जो कि प्रोहिबिटेड थी 269 एसटी, वो हो गया 186। तो प्लीज ये आप याद रख लीजिए सो दैट आपको बहुत इजी हो नए फॉर्म 26 भरने में। 269 एसटी हो गया रूल सेक्शन 186। सेक्शन 43 भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस का जो क्लॉज होता था, क्लॉज 26 होता था, वो अब हो गया है सेक्शन 37। एक्चुअल पेमेंट बेसिस का अगर आपको फॉर्म 26 में सेक्शन 37 दिखेगा तो आपको उसमें 43B वाली डिटेल्स डालनी होगी। जो ओल्ड में सेक्शन 40 क्लॉज ए क्लॉज आई होता था, पेमेंट नॉट डिडक्टेबल, वो हो गया सेक्शन 35। सेक्शन 35 प्लीज जॉट इट डाउन, सेक्शन 35 हो गया है। आपको जब सेक्शन 35 दिखेगा क्लॉज फॉर्म 26 में, तो आपको पेमेंट नॉट डिडक्टेबल वाली डिटेल्स डालनी होगी। जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है 44 AD 44 ADA, वो सेक्शंस हो गए सेक्शन 58। वो सेक्शन है सेक्शन 58। तो 58 सेक्शन हो गया है 44 AD एंड 44 ADA के लिए, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए। जो नॉन रेजिडेंट के सेक्शंस है 44 B 44 ट्रिपल डबल B 44 ट्रिपल B, वो है सेक्शन 61। ये नॉन रेजिडेंट के लिए सेक्शन है, ये है रेजिडेंट के लिए। जो रेजिडेंट के लिए सेक्शन है उनके लिए है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 58। जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92 सीरीज शुरू होती थी, सेक्शन 92 सीरीज होती थी ए से लेके एफ तक, वो हो गया सेक्शन 166 से लेके सेक्शन 173 तक। तो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की चीजें जो है वो डालनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया कि नए वाले में क्लॉज 40 में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग की प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो रूल जो सेक्शन पहले 92 CE था वो सेक्शन 170 हो गया है। कैपिटल थिनिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे 30% से ऊपर अगर एबिटा का इंटरेस्ट है तो वो डिसअलाउ आएगा। तो वो सेक्शन 177 है जो पहले कभी था ही नहीं 3CD में, वो फॉर्म 26 के अंदर 177 सेक्शन के अंदर आपको मेंशन होगा। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो पहले 145 था जिसमें आपको बताना होता था कि कैश बेसिस कर रहे हैं एक्रूवल बेसिस कर रहे हैं, वो हो गया सेक्शन 276। तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। एंड आप जब ये मेमोराइज करेंगे उसके बाद आपको फॉर्म 26 भरना बिकम वेरी इजी। तो दीज आर द चेंजेस, दीज आर द प्राइमरी चेंजेस जो ड्राफ्ट फॉर्म 26 के अंदर मेंशन्ड है। इनमें से आई एम एक्सपेक्टिंग कि 95% चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे और वही हमें टैक्स ईयर 26-27 के लिए भरने होंगे। अब मैं अपने थोड़े व्यूज बता देता हूं कि क्या क्या मेरे व्यू है इन चेंजेस से क्या होगा। ये मेरा प्राइमा फेसाई व्यू है कि इन चेंजेस से, ये जो चेंज हो रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि 143(1) जो इंटीमेशन है उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट 143(1) की जो एडिशंस है वो मेरे अकॉर्डिंगली ज्यादा होंगी।
बिकॉज बहुत ज्यादा रिकंसिलिएशन आ जाएंगे। तो कोई भी टैक्स ऑडिट तो खैर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो दे आर अंडर द इंक्रीज एक्सपोजर बिकॉज ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन। मुझे लगता है कि जो पहला फॉर्म 3D था वो कंप्लायंस था, अब जो फॉर्म 26 है वो एनालिटिक, अब फॉर्म 26 एनालिटिक्स ओरिएंटेड है, अब वो कंप्लायंस ओरिएंटेड फॉर्म नहीं रहा है। अब वाया फॉर्म 26 दे कैन इजीली गेट इनटू एनालिटिक्स एंड दे कैन सी कि कौन सी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। जिस तरीके से नेचर ऑफ कोड उन्होंने बताया कि ए से लेके एल तक आपको कोड मेथोडोलॉजी बतानी है कि पेमेंट किसे की हुई है, दे कैन इजीली एनालाइज कि यहाँ पे कोड ये लिखा है और जिसने ये पैसे लिए हैं वहां पे कोड डिफरेंट लिखा है, तो दे कैन इजीली गिव यू नोटिस। और ये जो है, जो पहले डाटा एंट्री होती थी, आज की डेट में दिस इज अ गुड थिंग कि अब वो डाटा वैलिडेशन के बेसिस पे रहेंगे कि किस तरीके से डाटा आपकी वैलिडेशन करनी है, क्या क्या डाटा वैलिडेशन है, और वहीं पे वो एरर रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दीज आर सर्टेन चेंजेस जो मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ 3CD। मैंने इसमें प्रेजेंटेशन एक बनाई थी जिसमें मैंने था फॉर्म 5 जो कि CIT अपील्स का है। फॉर्म 35 से लेके फॉर्म 99 नए एक्ट में फॉर्म 99 है जो CIT अपील्स है, उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस है। ये चेंजेस जो है आपको 1 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपको ये सारे चेंजेस आपको लर्न करने होंगे। कि पहले ओल्ड फॉर्म 35 के अंदर 17 क्लॉजेस थे, अब फॉर्म 99 के अंदर 29 क्लॉजेस है, और इसके अंदर मैंने आपको बताना था कि क्या क्या चेंजेस है, लेकिन वो मैं अब आपको इस प्रेजेंटेशन में नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो हमें कोई कभी और से एक सेमिनार करना होगा जिसमें मैं आपको और चेंजेस बताऊंगा, जिसमें फॉर्म 99 एंड फॉर्म 35 के चेंजेस और किस तरीके से CIT अपील में अपील करनी है, किस तरीके से IT/AT में अपील करनी है, और उनके क्या क्या चेंजेस है। और वो बहुत ज्यादा सिस्टम ड्रिवन फैक्ट बन गया है, लेकिन हमें वो दूसरी कभी और प्रेजेंटेशन में, दूसरे कभी और वेबिनार में वो डिवोट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि आई एम अ एडवोकेट हु स्पेशलाइज इन टैक्स लिटिगेशन। मैं क्या करता हूं? मैं एक एडवोकेट हूं जो स्पेशलाइज करता है टैक्स लिटिगेशन में, और मैं अब हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हेल्प करता हूं। मैं उनकी कैसे हेल्प करता हूं? मैं उनकी टैक्स लिटिगेशन की सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता हूं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो जनरली मैंने देखा, आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि दे आर जनरली बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, कि मेरिट्स में क्या होता है केस के लिए। देयर प्राइमरी फोकस इज प्राइमरली ऑन मेरिट्स, कि मेरिट्स को हम कैसे सेटिस्फाई कर ले। बट एज एन एडवोकेट का प्राइमरी फोकस होता है कि कहाँ पे वो टेक्निकलिटी में केस निकाले। वो मेरिट्स पे कम जाता है, वो देखता है कि कहाँ पे लॉ का वायलेशन है, कहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने सर्कुलर एंड रूल्स का वायलेशन करा है, और उसके बेसिस पे नेगेटिव फिलॉसफी बना के वो कोर्ट्स के पास जाता है, एंड देन दे क्वैश द नोटिसेस। तो रादर देन गोइंग थ्रू द पॉजिटिव वे जो है, जो मेरिट्स पे जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स गोज ऑन टू द नेगेटिव वे। तो मैं गाइड करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उनको सजेस्ट करता हूं कि दीज आर द टेक्निकलिटी इन लिटिगेशंस। 148 में क्या लिटिगेशन है, सर्च की क्या लिटिगेशंस है, कैसे रीजन टू बिलीव को क्वैश करना है, कैसे 151 अप्रूवल को क्वैश करना है। या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये गाइड करता हूं कि आपको इन केसेस के लिए आपको अपील में जाने की जरूरत है या आपको रिट पिटिशंस में जाने की जरूरत है। कैसे आपको असेसिंग ऑफिसर का वर्क ऑडिट करना है कि जिस तरीके से उसने डिमांड निकाली है, वेदर दैट डिमांड इज करेक्ट और नॉट, ये मेरिट्स की बात है। जो
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, बट द वे द मेथडोलॉजी बाय विच द डिमांड हैज बीन डिटरमाइंड, दैट इज करेक्ट और नॉट, इस चीज के लिए आई एम एक्सपर्ट इन इट। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एज अ टैक्स प्रोफेशनल, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, टू सीक माय सेकंड ओपिनियन कि इस केस में क्या क्या टेक्निकलिटीज है, एंड आई विल हेल्प इन सॉल्विंग दैट केस। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर और आप लोग मेरा ईमेल आईडी, यू कैन रीच आउट, यू हैव केस, you give, take a second opinion from me, don't have to do any a second opinion, and I'll tell you कि these are the jurisdictional debility that the case has। मेरिट्स में आप लोग खुद बहुत स्ट्रांग हो, बट सेकेंडरी चीज टेक्निकलिटी चेक करनी है, दैट आई विल शो, दैट आई विल टेल। जब आपको टेक्निकलिटी उस केस की पता लगेगी तो आपको वो केस बहुत इजीली लगने लगेगा, आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ मेरिट्स में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है, these are the debilities, these are the defect with the case carries, and merits में we are already strong। तो दिस इज इट। एंड अगर किसी के फॉर्म 26 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली किसी ने अभी ट्राई नहीं करा होगा फॉर्म 26, आई नो, बट अगर किसी को कोई भी डाउट है मेरी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वी कैन टेक एनी क्वेश्चंस, और यू कैन नोट माय नंबर, आप मेरे को क्वेश्चन सेंड कीजिए एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस विदाउट एनी हेजिटेंट। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। एंड कभी और सेमिनार होगा तो बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू शो यू कि क्या क्या फॉर्म 99 के अंदर चेंजेस है या क्या क्या लिए चेंजेस है। वी विल कीप अ सेशन ऑन दैट आल्सो। सो दैट इज इट। थैंक्स फ्रॉम माय साइड। Any questions, sir? Okay. On behalf of everyone, I sincerely thank CA Advocate Shikhar Garg for such an insightful and practical session. Your clear analysis of the Income Tax Rules 2026 vis-a-vis 1962 rules has provided valuable clarity and actionable understanding for all professionals present today. We also appreciate all participants for joining and making this session meaningful. With this, we conclude today's webinar. Thank you and have a good day. Thank you very much for all.